Hello everyone, this is your Insight Coach Poonam and welcome back to yet another interesting video on graphology where you get to learn on how to improve your life by improving your handwriting. Hey everyone, welcome to the master class on WhatsApp, and we are going to open this portal for 1 hour wherein I'm going to post short videos on 10 fascinating facts about your personality through graphology. तो आज हमारे जो व्हाट्सएप मॉड्यूल है इसमें 10 फैसिनेटिंग फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, मगर इसमें शॉर्ट वीडियोस हम शेयर करने वाले हैं सो दैट in this 1 hour you can go through those short videos as well as you can analyze what are certain things in your handwriting that is holding you back from giving your 100% in your life. You will discover certain positive aspects also, but since this is a 1 hour WhatsApp masterclass, I'm going to be very crisp in the conversation. So go through the videos, and I'll suggest that after every video note down certain things so that you don't forget a lot of things, because we're going to share a lot of things. And बहुत सारी चीजों में जब आप लिखते हो तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अटेंड करने से पहले आपके पास वो A4 शीट जो है वो आपके साथ ही रहे, राइट. एंड आई नो जब आप वीडियोस देखेंगे तो देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट आई टेल यू वन थिंग. जब हम बात करते हैं ग्राफोलॉजी के, तो ग्राफोलॉजी के हर एक एलिमेंट में थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स है. ओके, सो इट इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड काइंड ऑफ टॉपिक. तो आप एक व्यक्ति को एक ही रूल अप्लाई नहीं कर सकते. सो अगर मैं आज शेयर कर रही हूँ आज आपसे लेटर टी के बारे में, तो सिर्फ लेटर टी के बेस्ड पर आप अपना पर्सनालिटी जो है वो जज नहीं कर सकते, देर आर एनालाइज नहीं कर सकते. देर आर लॉट ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑल्सो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी एनालिसिस. तो पर्सनैलिटी एनालिसिस जो है, दैट इज ग्राफोलॉजी, is a science जहाँ पे you have to look through all the angles of a personality, and based on that we give them a SWOT analysis, यानी उनका strengths, उनके weaknesses, उनके लिए क्या opportunities है based on that, and क्या threats हो सकते हैं. तो ये एक proper process होता है. But before we dive into our module today, I'm going to give you a little brief about myself. You have been attending a lot of videos of ours. आप लोग YouTube पे हमसे जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे है, ट्विटर्स पे, लिंक्डइन पे हमारे कंटिन्यूस जो वीडियोस है, फोटोग्राफ्स है, वो आते रहते हैं. तो आज जो आप A4 शीट रखोगे वो उन प्लेटफॉर्म पे भी जब आप उन वीडियोस को देखोगे तब भी ये एक अच्छा रेफरेंस होने वाला है आपके लिए. तो कीप दिस पेपर विथ यू, आपके पास अच्छे से रखिए, इसे संभाल के रखिए, सो दैट यू कैन ऑलवेज गो बैक टू योर हैंड राइटिंग when you go through all those videos that we post on social media platforms. To start very quickly, my name is Poonam Hegde. I'm an insight coach and I help people in two areas. I help people in personal development and I also help them in graphology. A personal development में graphology एक supporting tool होता है जहाँ पे I can look through your handwriting and I can give you a lot of insight about your personality. Certain things which are said and certain things that are unsaid can be discovered through graphology. Graphotherapy is a part of graphology where there are certain necessary changes जो आपके हैंडराइटिंग में आपको करने पड़ते हैं so that आपके जो desired results है वो आपको मिलते रहे. To start with, I started my career quite early. I have worked for nearly 20 years now, and for the past 20 years, I've been helping organizations like Siemens, L&T, HPCL, UTI. There are a lot of companies. I have around 100 plus companies whom I have worked with, and I have worked as a corporate training consultant as well as I'm an author. I'm also a graphologist and I'm a CBT professional. So I'm into personal development area for a long time now. And through graphology, I've been helping a lot of people. I've impacted more than 15,000 people in the areas of personal development and graphology. So to start with our first, fascinating fact. So our first fascinating fact talks about signature. Now, there are times जब बहुत बार लोग पूछते हैं कि signature अच्छा कैसे किया जाए. तो अब आप इस signature को देखिए. इस सिग्नेचर को देखते ही आपको आपके दिमाग में क्या आता है? ओ वाओ, दैट इज A.R. शर्मा. हाँ, अब इसको देखकर कैसे लगता है? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिग्नेचर. इट हैज गॉट लॉट ऑफ एम्बेलिशमेंट्स. नाउ व्हाट आर एम्बेलिशमेंट्स? एम्बेलिशमेंट्स आर certain things which are not part of your letters. That means if I am writing A.R. शर्मा, इसके अलावा जो भी चीजें मैं करता हूँ, अब इसमें अंडरस्कोर नहीं आएगा, बट दिस पार्ट जहां पे आप एक एरो लगा रहे हो या फिर इस तरह का जो ड्राइंग आर्ट,
ओके। कभी कभी कोई कोई कैलीग्राफी वे में भी अपने हैंड राइटिंग को लिखते हैं। तो जब आप इस वे से लिखते हो तो एनीथिंग दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर लेटर्स इन योर सिग्नेचर, वो जब हम करते हैं एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा लूप, मतलब बहुत बड़ा ड्राइंग के रूप में। अभी जैसे ये जो है ये आर नहीं है, मगर ये आर समझ में ही नहीं आता है, इस एक आधा पार्ट ही आर है, बाकी उन्होंने हार्ट जैसा किया हुआ है। तो एनीथिंग दैट इज एक्स्ट्रा, राइट, जहां पे ड्राइंग किया गया है, आर्ट किया गया है, कुछ सम काइंड ऑफ फ्लरिशेस, ओके, सम काइंड ऑफ डॉटेड फ्लावर्स या ऐसा कुछ भी आर्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एम्बेलिशमेंट। अब जब हम एम्बेलिशमेंट करते हैं तो एक व्यक्ति का माइंडसेट क्या होता है, व्यक्ति का माइंडसेट होता है कि मुझे जो है मेरा जो हैंडराइटिंग है वो अच्छा लगना चाहिए, वो सुंदर लगना चाहिए, आई शुड स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स, है ना। तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग आती है कि आई शुड स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स, मैं अलग दिखना चाहता हूँ लोगों से। तो ये जब आप हैंडराइटिंग में करते हो तो ये क्या सिग्निफाई करता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ज्यादातर लोगों ने देखा होगा कि फेसबुक पर कुछ लोग जो है वो बहुत एक्टिव होते हैं और कुछ लोग जो है वो बहुत सुपर एक्टिव होते हैं, यानी अपने लाइफ में जो जो चीज चल रहा है वो उन्हें सब कुछ पोस्ट करते हैं। एंड साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि जब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजों की कमी होती है, तब आप उन्हें ज्यादा शोकेस करते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये लोग क्यों करते हैं, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, पीपल गो थ्रू so many things. Now when you buy something you want to showcase that on Facebook, so either you are feeding your ego, you are boasting, either you are showcasing that to a person जिसको आपको आंसर देना था, ठीक है। तो ये आप बताते हो, तो किसी ना किसी व्यक्ति को दिखावा करने के लिए जब जो कोई सुपर एक्टिव होते हैं, यानी हर चीज फेसबुक पर डालते हैं, मतलब मान लीजिए कि उनके बेसिक चीजों को भी वो डाल देते हैं। तो व्हेन दे लुक एट दैट परफेक्शन, की ग्लास को, मैं आपने देखा होगा बहुत सारे फोटोज, कॉफी का मग रखा जाता है और वो कॉफी पीने के लिए दिया जाता है, लेकिन उस कॉफी को, मग को एडजस्ट करते करते शायद वो कॉफी ठंडी हो चुकी है, बाय द टाइम दे हैव दे आर लुकिंग फॉर अ परफेक्ट इमेज। सो उस परफेक्ट इमेज के चक्कर में आप क्या करते हो, आपके लाइफ में जो चीजें नहीं है उसे दिखाने की शोकेस ज्यादा करते हैं। तो ये जो शोबाजी है, ये जो चीजें हैं, ये इस सिग्नेचर में भी दिखता है। सो ऐसे राइटर में समथिंग दैट इज मिसिंग इन योर लाइफ, ठीक है, जो आपके लाइफ में नहीं है, ठीक है, उसे आप दिखाने की कोशिश करते हो इन योर सिग्नेचर। तो मान लीजिए दैट मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने सिग्नेचर को बहुत ही एक्सट्रीमली बड़ा करके दिखा दूंगी। बड़ा सिग्नेचर होना अच्छी बात है, ओके। 3.5 तक आप जब अपना हैंडराइटिंग लिखते हो तो नॉर्मली जो एक बहुत कहते हैं अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन है, उसे अपना सिग्नेचर थोड़ा बड़ा करना चाहिए। हमारे जब सेशंस होते हैं तो हम इसके बारे में बहुत डिटेल में बताते हैं कि कितना मिलीमीटर होना चाहिए और कैसे फाइंड आउट करते हैं। बट क्योंकि आज हम सिर्फ 10 फैसिनेटिंग फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि बड़ा सिग्नेचर ठीक है, मगर एक्सट्रीमली बिग सिग्नेचर, ठीक है, is a indication that the person wants to show that he is very confident, हालांकि वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं है। when you draw hearts, ठीक है, या इस तरह के जो फ्लोरल आप इमेजेस डालते हो, इसका मतलब क्या होता है, लव इज मिसिंग इन योर लाइफ, या यू आर सीकिंग लव, राइट। सो जो आपकी लाइफ में नहीं है, तो प्रिटेंस जो है वो बहुत ज्यादा दिखेगा आपको इस तरह के सिग्नेचर में। तो जब आप बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक वे में हर चीजें जो अननेसेसरी है एम्बेलिशमेंट लगाते हो, तो ये एम्बेलिशमेंट्स दिखाता है कि आपके लाइफ में या तो रिलेशनशिप में कुछ कमी है जिसकी वजह से आप ये हार्ट्स ड्रॉ कर रहे हो, आपकी लाइफ में मे बी सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ मनी जो है वो मिसिंग है, या तो कॉन्फिडेंस है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप सिर्फ दिखावा करना चाहते हो, जस्ट वांट टू बोस्ट। तो ये आपको बताता है नंबर वन, दैट इज एम्बेलिशमेंट। सो आई एम श्योर ये जो फैक्ट है ये आपके बहुत सारे लोगों के लिए एक अमेजमेंट पॉइंट होगा। सो इफ यू रियली अमेज्ड अबाउट दिस पॉइंट, देन टाइप ऑन द कमेंट बॉक्स that wow, mind boggling, yani BG. Type on the comment box BG if you learned something new. If you want to learn more about graphology, then do follow us on all social media platforms like LinkedIn, Facebook, Instagram and Twitter. And yes, do like, comment, share and subscribe our channel. Till then,
Stay blessed, stay empowered.